Over to Priyadarshini. Please start the proceedings of the day. Right. Good afternoon, everyone. We PRSD team welcoming all media professionals, students, and whoever joined us to know about today's webinar. A warm welcome to all of you at PRSD platform. Thank you for joining us. I am Priyadarshini Sharma, one of the governing body member of PRSD. Public Relations Society Delhi is a platform where we connect each other, sharing our thoughts, celebrate together, and grow together. Before we start our session, I would like to welcome our chairman, Dr. Sarpresh Tiwari, our vice president, Mr. Vipin Kharbanda, our general secretary, Shri G.S. Pavasar, our prestigious governing body members, Dr. Lata Suresh and Ms. Prerna. We PRSD team would like to welcome our speaker and honorable guest, Professor Shri Sanjeev Bhanawat ji. Sir, welcome. Who is the former HOD of Journalism and Mass Communication and a former director of APDC University of Rajasthan. As the topic of webinar says, here we are discussing about artificial intelligence and media, or artificial intelligence in media, we can say, which is everyone's favorite topic these days. We are welcoming you with your curious questions and with our smart answers. I'm sure you all will enjoy this session and develop your knowledge through this. I would like to request Baba sir to please give a concept of series talk. Over to you, sir. हरीश को डिप्यूट कर दो 10 मिनट में बंद करो क्या हो गया तुमको Thank you, Priyadarshini. With the request, all others to mute the mic so that the distractions to everybody shall be avoided. And at the outset, happy World PR Day to you all. I know it was yesterday, but the hangover is always on for a couple of days. So, wish you a happy World PR Day. And the concept of series of talk shows in Public Relations Society is not new, but this was more prominent during the COVID days when we were all confined to home, and then we were very aggressively doing talk after the talk. So in those days, we were having the Zoom link without any time restrictions. So that's why it was all flow of activities was very good. And now this concept of Samvad series. The webinar today is very important and prestigious because of many reasons. And one of them is that it is part of the Samvad series, which used to be a flagship program of Public Relations Society. For all those new members who have joined the society later on, and there are many members who have joined after the 2019, Samvad series was thought of none other than Mr. Naresh Kumar, who was the founder chairman of the New Avatar of Public Relations Society. And he had always believed that doing things in a big way, and he never used to settle without any perfection. And he was absolutely by Rao Saab, who was to be here today, but he couldn't be here because of some bereavement in his neighborhood, which is holding him there. And then under the able leadership of late Paul Saab, हम उन दोनों में इसको फिजिकल मोड में करते थे, और कोई भी प्रोग्राम इज इनकम्प्लीट विदाउट लंगर. तो पॉल साहब बोलते थे, हाँ नरेश साहब आप प्रोग्राम कर लो, लंगर का इंतजाम मैं कर दूंगा. तो कहने को चाय और समोसा ही कहते थे, बट इट यूज टू बी हाई टी. So that's why our another reason our this series were very popular, right? So the people used to come in big numbers. Rajat Gupta was a great advisor who always used to be with us. Many people are busy, but I am sure they will be joining as we progress deeper. The full-fledged team at the disposal of Public Relations Society. Sarvesh ji abhi jab baat karenge, so he will further dwell on that. Samvad series was launched as a flagship event under the banner of First Talk by Sir Mark Tully. That is what our the bar were raised at that time. When we approached Sir Mark Tully, Sir, Public Relations Society wants to do a talk. So he said, give me a topic.
And at that time, when we gave him the topics that we want creative listening, he said, very, very thoughtful topic. Then Naresh said, "Ki, sir, you want to change, you can change." He said, "No, nothing doing. You have given a good topic, and that maybe add a chapter in my profile later on in some book." So that's why he dwelled on that, and that topic was very good. He dwelled very well on that, and the result was that the next day, all newspapers carried it with a very open mind and gave the good space to that. And after that, we have another 2 or 3 programs. They are all full. The first program was such, there was no space to even enter. And people were telling you, "Baas CCTV lagana chahiye." That was the profile. So, sir, this is the profile. And today's talk by Professor Sanjeev Banawan sir is not less a personality, that we are happy that Lata Suresh has mobilized that and he has accepted that. And we are going to talk under this banner. Now, coming to today's program. When we were debating the relaunch of the Samaj series, we wanted to ensure that the flag shall be kept high. But simply keeping the flag on high mast is no good if it's not hosted in a manner that it wave well and it blow well, majestically and consistently. And with one voice, the name of Dr. Lata Suresh at that time was echoing in the hall. And it was doubtful that she will accept it, as she is deeply occupied and engrossed in office work. Even yesterday night and till morning before coming to his, I know how we have pushed her. Madam, time ho gaya, time ho gaya. Yet, don't worry, at time I will join. So this is the importance of that. But I knew this will happen, this will come true, because my father always says that if you want to have work get done, give to a busiest person. And later on, somebody told me this is the quote of Benjamin Franklin. But I say, when I look at it, even he has denied, someone else has quoted. Even a popular quote of Indira Gandhi, it was that if you want to get things done, go to a busiest person. So that we are happy that we are in safe hands. Now, a brief of Dr. Lata Suresh is not possible to give because I can simply go to her LinkedIn profile and you will find her brief over there. But you will find there also she is constrained about her brief because the LinkedIn has had limited the text you can post it over there. So even that is incomplete. But then it is my honor's duty to mention something about her briefly academically. She is PhD, MPhil, MBA, Masters in Library Sciences, another MBA, postgraduate diploma in Library Sciences, and then she is a Commonwealth Fellow from UK. She is the head of the department at the office. She is a trainer, singer, poet, motivational speaker, author of books, and she is always writing another book. And that is the reason she always keeps her journal ready in her hand, because she believes in that the idea is very perishable, and before it is captured, it will lost. So she is always working on the next book. And on the experience front, 3 decades of experience, I cannot sum it in minutes and seconds, but then she has got all the experience, be it management, administration, training, or retraining. She is good at everything. And currently, she is heading the country's prestigious Knowledge Resource Center at the Indian Institute of Corporate Affairs, which is the Government of India body. And she is head of IP and corporate communication. That is the connect of ours with her, right? And she is a highly decorated officer, full of awards and recognition, be it at the national level from the president or a president award or the Commonwealth award. She is one after the another. She is a globetrotter. It is a hard, difficult to find her in the country, but she is ready to join online wherever she has. I know that how she handled the webinar from even Russia and Istanbul. She is highly energetic, dedicated, and capable of charging other person. You know, now आजकल जमाना एक battery pack का है ना, so she is a battery pack. She should be around you
whenever you feel that yes, you are losing the power. She's a role model worth emulating. And I must stop here and hand over the mic to Priyadarshini to move forward. Right? Thank you very much, everybody. Please, Priyadarshini, over to Priyadarshini. Priyadarshini, your mic is muted. Mic is muted. Sir, All I right. would like to request our chairman, Shri Sarvesh Tiwari ji, to please join us and say something about the session. नमस्कार, वेलकम प्रोफेसर साहब। एक चीज़ जो मुझे बार बार लगती है सर, मैं अपने स्कूल में भी जाता हूँ, एफओ स्कूल में, तो जो टीचर्स मेरे से भी छोटी हैं या छोटे हैं, क्योंकि वो गुरु हैं तो सर अपने आप झुक जाता है। सो ये एक वजूद होता है एक गुरु का, और हमारी खुशकिस्मती है कि इस संवाद सीरीज का जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो एक गुरु से हो रहा है। तो वेलकम सर, एंड वी आर प्रिविलेज्ड दैट यू हैव स्पेयर टाइम फॉर अस। ये जो सोसाइटी है, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी, ये एक राष्ट्रीय स्तर की सोसाइटी है, और इसका विजन जो है वो पब्लिक रिलेशन या कम्युनिकेशन सेक्टर के सारे लोगों को एक साथ समाहित करके एक जो हमारी फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनको जोड़ के एक मकसद को अचीव करने का है, कि एक वॉइस करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए फ्रेटर्निटी को एक बहाना है, और उस पर हम काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अगर हम नंबर के ख्याल से देखें तो एकमात्र सिंगल एंटिटी, एक सिंगल बॉडी, अगर इससे बड़ी कोई भी बॉडी कम्युनिकेटर्स की आज की डेट में भारत में नहीं है। हमारी चूंकि समय का अभाव है, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं कहूँगा, पर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स नो द डिटेल्स अबाउट पब्लिक रिलेशन सोसाइटी, सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट। बट सर इतना ज़रूर है कि यहाँ पे आपके मार्गदर्शन की भी आगे ज़रूरत पड़ेगी, और मैं इस प्लेटफॉर्म के बहाने से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि ये जो कहानी आज शुरू हो रही है वो आगे भी आपका मार्गदर्शन बना रहे, और आप भी इस सोसाइटी के एक मेंबर के तौर पे ज़रूर हमारे साथ जुड़े, तो उससे हमारे लिए बहुत हमारी खुशकिस्मती होगी। तो मैं वहीं पे छोड़ के मेरा 35 साल का संबंध है पीआरएसआई से। अच्छा सर, मैं जयपुर चैप्टर का चेयरमैन रह चुका हूँ, नेशनल काउंसिल का मेंबर रह चुका हूँ। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। तो ये सर एक अलग से हमने एक और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया था, आपको पता ही है, नरेश जी ने शुरुआत की थी, तो उनके भी थॉट्स वो हमारे बीच आज नहीं है, तो हम लोग का है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा करना है और सबसे बड़ा सम्मान उनके लिए लेके आना है सर। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, एंड आई वुड रिक्वेस्ट प्रियदर्शनी टू टेक द थिंग्स फॉरवर्ड, and I'll request everybody from the team to keep it short. Let us give most time to sir, so that in the interest of the listeners. I'm requesting Lata ma'am to please give an introduction of our respected Sanjeev sir, and please just setting a tone of this event. Ma'am, your mic is mute. Mic is mute. So thank you so much for this opportunity, and thank you for believing in me. And सर्वेश जी ने जैसे कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। तो आज क्योंकि 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा भी है, तो आप इसी पर्व को कमेमोरेट करते हुए हमने सोचा कि क्यों नहीं हमारे इस इवेंट की शुरुआत गुरु से किया जाए। So welcome to our seminar on AI and media, transforming content and consumption. So ladies and gentlemen, good afternoon to you all once again. Today marks a significant milestone as we gather here for a profound exploration into the transformative impact of artificial intelligence on media and content consumption. It is our distinct privilege and honor to introduce our esteemed speaker for the session, Professor Sanjeev Bhanawat. Professor Bhanawat stands as a towering figure in the realms of journalism and mass communication, renowned not only for his scholarly pursuit, but also for his visionary leadership. With a distinguished career that spans decades,
He has been a catalyst in shaping the academic landscape at the University of Rajasthan, Jaipur. As the founder and head of the Center for Mass Communication, his pioneering efforts have propelled the institution to prominence, fostering a legacy of excellence in media education. Beyond his administrative roles, Professor Bhanawat has been a trailblazer in curriculum development, contributing significantly to the formulation of learning outcome-based curriculum frameworks for journalism and mass communication at the undergraduate level under the auspices of UGC. His scholarly contribution extend to guiding numerous scholars in their pursuits of PhD degrees, enriching the academic community with profound insights and scholarly rigor. Recognized nationally and internationally, Professor Bhanawat impact transcends academia. He has authored and edited over 35 books on journalism, public relation, and mass communication, illuminating critical facts of media theory and practice. His editorial stewardship of the esteemed journal Communication Today has been instrumental in advancing discourse in mass communication research. In addition to his academic achievements, Professor Bhanawat has been a stalwart in fostering collaborations and organizing numerous seminar, workshops, and conferences both domestically and internationally. His commitment to media ethics and professional standard is underscored by his role as a reviewer of political broadcast and his leadership within professional organizations like Public Relations Society of India. Today, we are honored that Professor Bhanawat has graciously accepted our invitation to share his expertise on the intersection of AI and media. His insights promise to enlighten and inspire us as we navigate the dynamic landscape of digital transformation in media and content consumption. So please join me in extending a warm welcome to Professor Sanjeev Bhanawat, sir. We are deeply grateful to you, sir, for your presence and eagerly anticipate your enlightening discourse. Thank you so much. And before that, I would also like to mention that one of my book, that is Truth Under Fire, has been forwarded by Professor Sanjeev Bhanawat. Thank you, sir, and welcome to you. बहुत बहुत आभार डॉक्टर लता सुरेश जी इस आत्मीय परिचय के लिए। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष आदरणीय बाबा साहब, सचिव डॉक्टर सर्वेश तिवारी जी, इस सत्र की संचालक प्रियदर्शिनी शर्मा जी और गवर्निंग बोर्ड के सभी सदस्य और PRSI के सदस्य और देश के अलग अलग अंचलों से इस आयोजन में जुड़े हुए मित्रगण, जब मैं स्क्रीन पर आप लोगों को देख रहा हूं, कुछ चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ये एहसास हो रहा है कि आप सभी जनसंपर्क, शिक्षा और इससे जुड़े हुए जो अलग अलग अनुशासन है, उस क्षेत्र में आप सभी बहुत अनुभवी और समृद्ध अनुभव के धनी हैं। ऐसे समूह के बीच में बोलना अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन प्रयास करूंगा जो कुछ मेरा अनुभव है। हालांकि AI का मैं उस तरह से तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन एक समाज वैज्ञानिक के रूप में इन सारे मुद्दों को जिस तरह से देखा, समझा, परखा है, वो अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। जहां तक PRSI के मंच की बात है, मेरे लिए भी ये बड़े गौरव की बात है कि मुझे इस मंच पर आपने आज आमंत्रित किया, क्योंकि PRSI के साथ बहुत गहरा जुड़ाव और लगाव मेरा रहा है। सन 90 की बात है, जब इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता जयपुर में श्री KC सोंधी, उन्होंने KR सिंह साहब के वो बहुत अच्छे मित्र थे और उनके साथ मिलकर के डॉक्टर मनोहर प्रभाकर, जो राजस्थान सरकार में निदेशक जनसंपर्क रह चुके हैं, एक संस्था का गठन किया और तब मैं एक कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में जुड़ा था। उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी और चेयरमैन रहा, नेशनल गवर्निंग काउंसिल का आपका मेंबर रहा और न जाने कितने आयोजन किए हमने उस समय। अकादमिक दृष्टि से PRSI का जो योगदान है प्रभाकर जी के नेतृत्व में बहुत महत्वपूर्ण रहा। मुझे बहुत सारे नाम याद आ रहे हैं इस अवसर पर, चाहे वो सुभाष सूद साहब हों, KR सिंह साहब हैं, ND राजपाल जी हैं, चरणजीत सिंह हैं। मैं उस विवाद में नहीं पढ़ रहा हूं कि कौन PRSI में है और कौन PRCI में है, क्योंकि मैंने तो PRCI का भी नेशनल कन्वेंशन जयपुर में किया था। जयराम भी मेरे उतने ही अच्छे दोस्त हैं और अजीत पाठक तो मेरे बैचमेट ही, हमने तो साथ साथ जयपुर से पढ़ाई की थी। तो उन सारे वाद विवादों का मैं प्रत्यक्ष दृष्टा रहा हूं।
और एक अकादमिक रूप के साथ सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो एक पूरी की पूरी जो एक कहना चाहिए कि जो एक फिल्म की तरह से PRSI मेरी आंखों के सामने गुजर रही है। और 2 नेशनल कन्वेंशन हमने जयपुर में की। और अक्सर आप में से कई मित्रों ने ज्वाइन किया होगा, अक्सर एक बात कोट की जाती है, जब जयपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत, उन्होंने अपने निवास पर सभी डेलीगेट्स को डिनर के लिए आमंत्रित किया था। वो अपने आप में एक अद्भुत था। और शेखावत साहब एक सेशन में ऑडियंस में आकर के बैठे थे। इतना सम्मान मुख्यमंत्री स्तर के ऐसे वरिष्ठ नेता जो बाद में उपराष्ट्रपति बने, ये मुझे लगता है कि बहुत दुर्लभ है। तो PRSI का जो योगदान इस PR मूवमेंट को आगे बढ़ाने में रहा है, उससे हम सब परिचित हैं। और इस संस्था के साथ जुड़ना मेरे लिए भी एक गौरव की बात है, गर्व की बात है। और आपने मुझे इस मंच पे बुलाया, ये मेरे लिए और भी हर्ष और प्रसन्नता की अनुभूति है। अभी बाबा साहब कह रहे थे कल विश्व जनसंपर्क दिवस था। संयोग से जिस तरह से आपने ये संवाद श्रृंखला शुरू कर रखी है, कोविड काल में जब सब कुछ थम गया था, हमें लगा था आगे भविष्य का होगा क्या। लेकिन इसी विचार विमर्श की परंपरा को बनाए रखने के लिए 2020 में गांधी जयंती के दिन मैंने भी इस वैकल्पिक माध्यम का उपयोग करते हुए एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की। और आज लगभग 4 वर्षों में 130 वेबिनार मीडिया के अलग अलग पक्षों पर हम कर चुके हैं। और लगभग 350 एक्सपर्ट मेरे उस मंच पर आ चुके हैं। इवन AI पर हमने कोई 4-5 जो वेबिनार्स हैं वो आयोजित की हैं, और अलग अलग क्षेत्रों के मित्रों को उसमें आमंत्रित किया। और सारे YouTube पर हमारे वो जो डेलिब्रेशंस है वो हमने अपलोड किए हैं। तो ये सही बात है कि कोविड ने बहुत सारे दुख दिए हैं, लेकिन एक, क्योंकि ये मनुष्य का जुनून जिजीविषा है कि वो आपदा में भी अवसर तलाशता है, तो शायद ये अवसर हमको मिला है और हमने इसका उपयोग करते हुए हमारी इस संवाद श्रृंखला को जारी रखा है। इसमें कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं है। हमारी भाषा, हमारे प्रतीक को दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति समझ सकता है। वो हमारे इन आयोजनों के साथ जुड़ सकता है और इसमें भागीदार हो सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए है कि आज देश विदेश के अलग अलग कोने में बैठ करके हम इस विचार विमर्श की प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखे हैं। जॉन मैकार्थी ने जब इस कृत्रिम बौद्धिकता का या इस AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, ये जब नाम दिया था 1955-56 के आसपास, तब शायद उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि आने वाले 60-70 वर्षों में AI की दुनिया में इतना बड़ा चमत्कार हो जाएगा। 1927 को जन्मा वो बच्चा मात्र 28 वर्ष की उम्र में एक इतनी बड़ी खोज कर लेता है AI के नाम से कि वो मनुष्य की बुद्धि को, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रिप्लेस करने की शायद कल्पना होगी, आगे कर जाए तो वो अपन आगे बात करेंगे कि क्या संभावना हो सकती है, लेकिन शायद मनुष्य को सप्लीमेंट करने के लिए उसकी क्षमता और सामर्थ्य को, क्योंकि कृत्रिम बुद्धि कहते हैं मतलब वो कृत्रिम बुद्धि उसमें एक तरह से जनरेट की गई है। तो जो मानवीय बुद्धि और रचनात्मकता है उसको किस प्रकार से सहयोग दे सके, ये सोच करके उन्होंने इस AI शब्द को एक तरह से गढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि कृत्रिम बौद्धिकता के इस अनुशासन के संस्थापक जॉन मैकार्थी थे। हालांकि हमारी एक जो वेबिनार AI पे थी, तो प्रोफेसर हेमंत जोशी जो भारतीय जनसंचार संस्थान में प्रोफेसर रहे और बहुत लंबे समय तक भाषा को लेके अखबारों में लिखते भी रहे हैं, उनका रेगुलर कॉलम हिंदुस्तान में छपता था, उन्होंने शब्द पर आपत्ति की कृत्रिम जो बौद्धिकता को लेके। तो उन्होंने ये शब्द कहा कि इसकी जगह यंत्र जनित बौद्धिकता कहनी चाहिए, क्योंकि ये एक कंप्यूटर जनित एक तरह से हमने उसको ये ताकत या सामर्थ्य दिया है। चलिए, मैं भाषा के उसमें नहीं पढ़ूंगा, लेकिन केवल एक आपको एक विचार दिया है कि इस तरह के भी मत चल रहे हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ये मनुष्य से जुड़े हुए सभी तरह के कार्य सीखने में धीरे धीरे सक्षम होती जा रही है। ये तर्क कर सकते हैं, ये समस्या का समाधान खोज सकते हैं, और मनुष्य की कल्पनाशीलता में वृद्धि करने के लिए और अधिक उसको सहयोग, सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस AI की दुनिया का जो जादू है, मुझे लगता है कि हमारे सिर पे चढ़ के बोल रहा है। आज जीवन का कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा पक्ष है जिसने हमको प्रभावित नहीं किया है। आप किसी भी तरह की स्थिति कल्पना कीजिए, AI की प्रेजेंस और उपस्थिति आपको दिखाई देगी। मैं सोशल मीडिया से बात शुरू करूं। आप में से बहुत सारे मित्रों ने अभी WhatsApp पर एक नया फीचर देखा होगा।
मेटा एआई। अभी कुछ दिन पहले जब मैं उसमें कुछ सवाल डाल रहा था तो वो अपने हिसाब से उत्तर दे रहा था। पहला सवाल मेरा था कि मेरा अवतार बनाइए। पहले तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या क्या काम कर सकते हो, तो उसने बताया मैं ये काम कर सकता हूँ। उसमें एक था अवतार बना सकता हूँ। अब जो अवतार बनाया उसने, वो बिल्कुल मेरे से मैच नहीं खा रहा था। एक बच्चे का अवतार था, वो शायद मेरी ग्रैंड डॉटर की फोटो गैलरी में से लेके उसने बना दी। तो मैंने कहा इसमें तो मजा नहीं आया। तो वो मुझसे कहता है देखिए अब ये जो एआई है आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करवाता है, सजेशंस भी देता है। मतलब ये दुनिया कहाँ जाएगी मुझे नहीं पता। इस वेबिनार के शुरू होने के पहले हम यही बात कर रहे थे। तो कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि इस दुनिया में 20 साल बाद आना चाहिए था। बहुत कुछ नहीं देख पाएंगे हम जो शायद देखने की जिज्ञासा है, लेकिन फिर ये सोच के संतोष करते हैं कि हम बहुत कुछ वो देख पाए जो नई पीढ़ी नहीं देख पाएगी। घंटों टेलीफोन की लाइन में खड़े हुए हैं, स्कूटर की बुकिंग करानी है तो पुलिस के डंडे खाने पड़ते थे, और भी न जाने क्या क्या। रिजर्वेशन की लाइन में 2-2, 3-3 घंटे खड़े रहते थे रेलवे पे, और फिर 5 दिन बाद जाकर के पूछते थे टिकट कंफर्म हुआ नहीं हुआ। और वो जो लाइनमैन था टेलीफोन का, वो अपने आप को बादशाह समझता था, है ना। उसको कुछ दे दुआ करके भाई तो जरा हमारे टेलीफोन की लाइन ठीक रखना। ये दौर हमने देखा है, नई पीढ़ी ने ये नहीं देखा है। तो ये संतोष है कि हमने पूरा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जनरेशंस का तकनीक की दृष्टि से, उसको देखा है। तो अब उस एआई ने मुझसे ये कहा, मेटा एआई ने, कि आप अपने कुछ फीचर्स के बारे में बताइए। आपकी आंखें किस कलर की हैं, आपके बाल किस तरह के हैं, आपका चेहरा किस तरह का है। तो फिर मैं ट्राई करूंगा। फिर मैंने कुछ उसको लिख के भेजा तो उसने किसी विदेशी व्यक्ति का चेहरा बना दिया। मैंने फिर उसको कहा कि मजा नहीं आया। फिर वो माफी मांगता है कि मैं अभी ट्रेनिंग में हूं और कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है कि आगे इसको ठीक कर दे। फिर मैंने हिंदी में एक सवाल पूछा, तो पहले तो 2-3 लाइनें हिंदी में दिखी और एकदम से वो डिलीट हो गई। फिर वो कहता है कि मैं हिंदी सीख रहा हूं, अभी हिंदी सीखने में सक्षम नहीं हुआ हूं, जब मैं सक्षम हो जाऊंगा तब फिर आपसे बात करूंगा। तो इसका मतलब वो कई भाषाओं में अपने आप को ट्रेंड कर रहा है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि व्हाट्सएप, जिसका उपयोग मेरे ख्याल हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म आज आम आदमी के हाथ में है। बच्चा बच्चा उससे कहीं ना कहीं परिचित है, और ये हमारा एक कम्युनिकेशन का बहुत प्रभावी माध्यम बन गया है। तो ये जो माध्यम है, इसमें जिस तरह का एआई ने प्रवेश किया है, आप बैठे बैठे कोई भी सवाल का उसमें हल ढूंढ सकते हैं। अभी किसी ने सवाल पूछा हमारे उस वेबिनार में कि अगले 10 साल में एआई के क्या चमत्कार होंगे। जब तक एक्सपर्ट जवाब देते, मैंने उसमें सवाल टाइप किया, वेयर विल बी एआई आफ्टर 10 ईयर्स, और तुरंत उसके अंदर 5-7-8 उत्तर आ गए। हो क्या रहा है, जब मैं गूगल पे कोई डालता हूं कीवर्ड, तो मेरे पास कई पृष्ठ खुलते चले जाते हैं, और फिर मुझे उसमें गोते लगाने पड़ते हैं कि मेरे काम की चीज क्या है। लेकिन ये चैट जीपीटी और ये जो जिस तरह की ये मशीन लर्निंग और लैंग्वेज मॉडल आ गए हैं, ये आपको टारगेट ओरिएंटेड, जो आपने सवाल पूछा है उस पर वो सारा का सारा एक राइटअप जो है वो दे देते हैं। तो ये जो एक पिन पॉइंटेड चीज मिलने लगी है आपको, जो आपको चाहिए, आपके पास उन प्रश्नों का अंबार नहीं है। ये अलग मुद्दा है जिसको अपन डिस्कस करेंगे कि वो जो उसका आलेख है वो कितना उपयोगी है, कितना गुणवत्तापूर्ण है। लेकिन मेरा यह मानना है कि प्रारंभिक दौर में कम से कम आपको सोचने समझने के लिए एक मूलभूत सामग्री मिल गई है। तो आज एआई ने इस तरह से आपके जीवन में प्रवेश कर लिया है। लिंक्डइन, अब मैं लिंक्डइन पे हूं, नॉर्मल जो उसका सब्सक्रिप्शन है। अब मैं जब उसमें पोस्ट डालता हूं तो नीचे लिखा हुआ आता है रीराइट विद एआई। अब मैंने उससे ट्राई किया एक बार, तब उसमें आ गया कि यह सुविधा उन्हीं को है जो इसके प्रीमियम सब्सक्राइबर है, तो वो मेरे लिए संभव नहीं था। अब आप यूट्यूब, फेसबुक या अपनी मेल का एक्सपीरियंस देखिए। यूट्यूब पे जब मेरे किसी वीडियो पर कोई कमेंट आता है, तो जब मैं उसका उत्तर देने के लिए रिप्लाई को क्लिक करता हूं तो 3-4-5 ऑप्शंस मेरे पास आ जाते हैं कि आप उसके उस कमेंट पर क्या जवाब दे सकते हैं। सेम ईमेल पर है, जब आपके पास कोई मेल आता है कि हम आपको यहां इनवाइट करना चाहते हैं, तो आपके पास आ जाएगा मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, बाद में जवाब दूंगा। 2-3 आपके पास विकल्प आ जाते हैं। इसका मतलब आपकी हर गतिविधि को कहीं ना कहीं कोई ना कोई पढ़ रहा है, देख रहा है। जब मैं किसी एक, विशेषकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बहुत है ये, क्योंकि मैं नैक और यूजीसी में कई जगह गया, और जब भी जाते हैं तो पहले इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखते हैं। जब मैं उनकी वेबसाइट देखता हूं तो अधिकांश यूनिवर्सिटी की उन वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स के माध्यम से एक वर्चुअल कैरेक्टर आता है जो तुरंत आपसे पूछा, जैसे ही आपने वेबसाइट खोली, व्हाट हेल्प कैन आई डू फॉर यू, और उसके बाद आप उससे प्रश्न पूछते रहिए, वो आगे से आगे आपको जवाब देता रहेगा।
तो ये जो दौर आ गया है कि आपको हर क्षण, और ये सेवाएं आपको 24/7 है। किसी व्यक्ति को बिठाएंगे तो उसकी एक समय की सीमा है, 5 घंटे 6 घंटे, कितनी देर तक बैठेगा वो। कभी कभी बहुत ही इमरजेंसी हुई तो वो कुछ लंबे समय तक बैठ जाएगा, लेकिन उसके बाद उसको रेस्ट चाहिए, 6 दिन बाद 1 दिन का अवकाश चाहिए। वेतन की सारी शर्तें हैं, सेवा की सारी शर्तें हैं। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है, ये आपको 24/7 जो है वो सारी की सारी सुविधाएं दे रही है। बल्कि मुझे तो लगने लगा, जैसे कई बार हमारे यहाँ रिफ्रेशर कोर्स से मुझे जाने का मौका मिला, वो जो शिक्षक वहां आते हैं, विद ऑल ड्यू रिगार्ड टू द टीचर्स, कई बार जब मैं उनको सुनता हूं तो मुझे लगता है कि जब मैं इनको 5 मिनट नहीं झेल पा रहा हूं तो क्लास से बच्चा घंटा भर कैसे झेलता होगा, उनके उस एक्सप्रेशन को देखते हुए। ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि जो हमारी कक्षाओं के अंदर उपस्थिति कम हो रही है, उस विषय के ऊपर गूगल पे इतनी सामग्री है, इतने वीडियोस एक से एक अच्छे विशेषज्ञों के उपलब्ध हैं, बच्चा क्लास में आके करेगा क्या। और अब एआई ट्यूटर्स और एआई टीचर्स आ गए हैं। एआई एंकर्स आप सब जानते ही हैं किस तरह से इंडिया टुडे ने यहाँ शुरुआत की, उसके बाद रशिया में, साउथ कोरिया में, चाइना में, सब जगह ये उसके पहले ही आ चुके थे। और जब एआई के एंकर, वो सना या क्या नाम था उसका, वो जब पीएम को इंटरव्यू करती है तो उनसे कहती है कि मैं चाहती हूं कि पत्रकारिता की दुनिया में मेरा भी नाम हो। तो जब एआई एंकर इस तरह से बात कर सकता है, कई भाषाओं में बात कर सकता है, 24 आवर्स तक बात कर सकता है, तब ये एआई टीचर्स जो आ गए हैं, उनके साथ भी विद्यार्थी इंटरेक्टिव मोड पे बात कर सकता है। कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ सकता है। अभी यूजीसी ने स्वयं पाठ्यक्रम और ये सारे शुरू किए मूक कोर्सेज वगैरह, वो अभी वन साइडेड है। लेकिन आने वाले दौर में मुझे लगता है कि ये दौर आ जाएगा कि जब हम इंटरेक्शन के माध्यम से, कभी कभी ये लगता है मुझे कि क्या ये टेक्नोलॉजी टीचर्स को भी रिप्लेस कर देगी। क्योंकि अब तक तो हम ये कहा करते थे कि टीचर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ये सारी टेक्नोलॉजी उसको सप्लीमेंट करने के लिए है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि क्या हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे स्कूल्स इरेलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि भविष्य की हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। अब आप देखिए, ये जो एलेक्सा और ये जो सारे हमारे इसमें वर्चुअल असिस्टेंस आ गई है, उसने किस तरह से हमारे जीवन को बदला है। शायद आपने पढ़ा होगा अखबारों में, अभी कुछ महीने पुरानी बात है, एक परिवार में, उसमें जो सीनियर लोग थे, मतलब पेरेंट्स वगैरह जो भी सीनियर थे, वो लोग बाहर निकलकर गलती से दरवाजा बंद करना भूल गए। दरवाजा बंद करना भूल गए, दरवाजा खुला हुआ था, डबल स्टोरी मकान था और उस घर में 3 बच्चे थे ऊपर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और अनायास बंदर घुस जाते हैं उसमें। और बंदर घुस गए तो फिर आप सोच सकते हैं कि उनके साथ किस तरह की आशंकाएं हो सकती हैं। अटैक भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने नीचे घर भर बिखेरा पहले, फिर वो ऊपर चले गए। अब उन बच्चों का धैर्य देखिए, उन बच्चों ने एलेक्सा को कहा कि कुत्ते की आवाज निकालो, और एलेक्सा ने कुत्ते की आवाज निकाली, बंदर भाग गए। तो टेक्नोलॉजी कितनी हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। क्योंकि कई बार बहुत बहुत निगेटिव भी मैंने सुना है, और अपन थोड़ी बात भी करेंगे इसके एथिकल इश्यूज को लेकर के। लेकिन सवाल यह है कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कितने क्रिएटिव रूप में करते हैं। जब जब नई तकनीक आई है, पूरा इतिहास उठा के देखिए आप, जब पहली बार प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था, गुटनबर्ग ने जब पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी, तब भी देश में, दुनिया में ये बात आई थी कि अब कैसे धर्म ग्रंथों को कोई दूसरे वर्ग का व्यक्ति पढ़ लेगा। तब भी विरोध हुआ था। इसके बाद आपका रेडियो आया, फिल्में आई। फिल्मों के प्रारंभिक दौर में पुरुष पात्र जो थे वही महिला पात्रों का चरित्र है उसका निर्वाह करते थे। जब टेलीविजन आया तो हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और हमें विषय क्या दिए जाते थे? टेलीविजन युवाओं की सांस्कृतिक अभिरुचियों को खत्म कर देगा, टेलीविजन सामुदायिक संस्कारों को खत्म कर देगा। और उसके पहले जब शायद स्कूल में होंगे, तब हमें भाषण लिखने के लिए कहा जाता था विज्ञान अभिशाप है या वरदान। अब तो कोई बात नहीं करता है इस तरह की, इडियट बॉक्स कोई नहीं कहता है टेलीविजन को। कंप्यूटर क्रांति हुई, तब लगा नौकरियां जाएंगी। फिर ऐसा दौर आया कि जब नौकरी के लिए आप आ रहे हैं तो कंप्यूटर जानना अनिवार्य है। कंप्यूटर लिटरेट व्यक्ति को अच्छी नौकरी मिलने की संभावनाएं होती थी। तो मुझे लगता है कि इस एआई के दौर में भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसका हमको स्वागत करना ही पड़ेगा। और इसी आधार पर हमें इस आकाश मार्ग से जो आक्रमण हमारे यहाँ हुआ है, इन चुनौतियों को स्वीकार करने की रणनीति जो है वो तय करनी पड़ेगी। तभी हम लोग आगे के जो हमारा जीवन है या आगे का जो दौर है, या यूं कहूं कि अगली पीढ़ी के लिए
हम जो कुछ देकर जाना चाहते हैं वो उसकी जो प्रासंगिकता है वो तभी रहेगी जब हम उस तरह की नीतियों का या उस तरह की रणनीतियों को तैयार करें। कभी आपने फिल्म देखी होगी या जाते ही होंगे फिल्म देखने, कभी नाटक देखने, कभी सीरियल देखते हैं। एक हम अक्सर डिस्कस करते हैं खत्म होने के बाद, यार इस डायरेक्टर ने यदि इस फिल्म को ऐसे मोड़ दे दिया होता मजा आ जाता, फिल्म में कसावट आ जाती। ये शॉट जो है ना ये जरा गड़बड़ है, ये शॉट यदि ऐसे हो जाता तो फिर इसकी जो संप्रेषणीयता है, इफेक्टिवनेस है, जो उसका कम्युनिकेशन है वो बेहतर हो जाता। नेटफ्लिक्स जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने आपको ये सुविधा दे दी है। आज से कुछ साल पहले कोई ब्लैक या ऐसा कुछ करके उस फिल्म का नाम था, अभी स्लिप हो रहा है मेरे से, उसमें 5 तरह की एंडिंग थी उस फिल्म के अंदर और लाखों तरह के स्टोरी कॉम्बिनेशन थे और हर थोड़ी देर में एक आपके उस पे जो स्क्रीन है उस पे एक अपडेट आता है। आपने क्लिक किया स्टोरी उस तरह से घूम जाएगी, आपने कुछ भी नहीं किया तो स्टोरी अपने आप चलती जाएगी। अब उस फिल्म का टाइम कितना है ये कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम लाइन में टाइम आता ही नहीं है, क्योंकि टाइम तो निर्भर करेगा कि उस फिल्म को आप कब खत्म करना चाहते हैं। अब आप बताइए कि आपके हाथ में यह मौका आ गया है कि आप किसी फिल्म को अपनी इच्छा के अनुसार देख लें, अपनी इच्छा के अनुसार कहानी को मोड़ कर दें। तो ये कितनी बड़ी ताकत यूजर के हाथ में, कंज्यूमर के हाथ में आ गई है। ये मुझे लगता है कि एआई का बहुत बड़ा चमत्कार है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो एआई है वो हमारे सिर पर एक जादू की तरह से जो है वो हावी होता चला जा रहा है। आपको याद होगा बिल गेट्स ने एक बार कहा था, शायद ये 1996 की बात है, कंटेंट इज किंग, तथ्य सामग्री जो है वो राजा है। अब जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स है वो कहता है कंटेंट इज किंग नहीं, डेटा इज किंग, क्योंकि ये आपकी सारी जो टेक्नोलॉजी है वो तो डेटा बेस्ड है। ये पूरा जो एआई है वो इन डेटा की ही तो व्याख्या कर रहा है और उसी के हिसाब से आगे निर्णय करता है। अब ये एआई आपके जो रुझान है, गलती से आपने कोई ऐसी फिल्म देख ली फेसबुक पर या यूट्यूब पे या कहीं जो शालीनता की सीमाओं में नहीं है, तो आपने जैसे ही क्लिक किया और उसके बाद वैसी फिल्में आती रहेंगी। आपने रवीश का वीडियो देखना शुरू किया, आपके पास ज्यादातर वीडियो वही आएंगे जो सरकार विरोधी है। आपने अंबानी की एक वो देख ली फिल्म, उसके बाद अंबानी के पक्ष विपक्ष में जितने वीडियो वही आते रहेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपके रुझान को देख रही है। ये जो टेक्नोलॉजी है आपके समय को कैलकुलेट कर रही है कि आप कितनी देर तक वहां रहते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है वो आपका टाइम नोट कर रही है कि आप सुबह देखते हैं, शाम को देखते हैं, दिन में देखते हैं। तो जिस तरह से आपके रुझान हैं, जिस तरह के फिल्म्स आप देखते हैं, जिस तरह के सीरियल आप देखते हैं, जिस तरह के प्लेज आप देखते हैं इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो एआई की टेक्नोलॉजी आपको उसी तरह के सजेशंस देती जाएगी। तो आप उसमें जिस तरह का महसूस करते हैं, और फिर ये जो आपका सारा डेटा है वो किसको जा रहा है? उन कंपनीज को। और वो कंपनीज अपने इन दर्शकों के रुझान के आधार पर, उनकी अभिरुचियों के आधार पर वो फिल्म या सीरियल या जो भी उनके और प्रोडक्ट बना रहे हैं या वो जो कंटेंट जनरेट कर रहे हैं उसको वो तैयार करते हैं। उसमें जब आपको वो देखते हैं कि आप किस समय देख रहे हैं, आपका ज्यादा व्यूइंग टाइम क्या है, आप किस एज वर्ग के हैं, किस तरह के प्रोफेशन में हैं, किस तरह की हॉबीज हैं, उसके आधार पर वो सारी चीजें जो है वो तैयार होंगी। तो ये जो एआई है, कभी मुझे लगता है कि इसका चमत्कार यह है कि इंसान से भी आगे सोचता है। जितने हमारे ये प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन अब तो जो मीडिया हाउसेज हैं उनमें भी ये सारी चीज आ गई है। मान लीजिए मैं अभी आपसे यहाँ दिल्ली चैप्टर से बात कर रहा हूँ और कल के मैं दिल्ली के अखबार देखता हूँ कि आज के इस आयोजन की खबर छपी है कि नहीं छपी है, छपी है तो क्या छपी है, फिर उसके कई दिन तक मुझे वो दिल्ली की खबरें मिलती रहेंगी उसमें। तो आप पिन पॉइंटेड जो खबरें हैं वो ढूंढ सकते हैं। तो ये आपको सुविधा एआई ने दे दी है कि आप जिस तरह की आपकी रुचियां हैं उसके अनुकूल सामग्री को ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। इसी तरह से मुझे लगता है कि ये तकनीक आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होगी। जो बेहतर सामग्री दे पाएगा वो जो ब्रांड है उसको बढ़ावा देने में उसकी विशेष भूमिका होगी और इसमें एआई अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसके जो कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, उनकी जरूरतों और इच्छाओं को वो पहचान पाएगा और उसी के अनुरूप दर्शकों के अनुभव को, मतलब इसके साथ एक पर्सनलाइज्ड फीलिंग जुड़ेगी।
वो दर्शकों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए तरीके बदलेंगे। तो इस तरह से एआई नई तरह की व्यू रचना तैयार करने के लिए, रणनीतियां तैयार करने के लिए आपको प्रेरित करेगा, बाध्य करेगा, क्योंकि इसमें यह क्षमता है, जो डेटा आपने डाला है उसके आधार पर यह भविष्य का अनुमान कर सकने में सक्षम है। यह दर्शक, पाठक और श्रोता की पसंद का अनुमान कर सकने में सक्षम है। ये ग्राहक के या कस्टमर के व्यवहार को समझ सकने में सक्षम है। तो इसका जो संभावना क्षेत्र है बहुत व्यापक, विस्तृत और विविध है। इसलिए मुझे लगता है कि एआई के माध्यम से हम अपनी सेवाओं को अधिक व्यापक, आकर्षक और मनोरंजक बनाने की दिशा में उसका महत्वपूर्ण उपयोग कर सकते हैं और अपनी दीर्घकालीन योजनाओं के निर्माण में भी इसका सहारा ले सकते हैं। जो डेटा मैंने पढ़े हैं 2023 तक $9 बिलियन, कल्पना कीजिए कितने अरबों रुपए जो है, $9 बिलियन इस पर जो है वो खर्च हो चुके हैं इस एआई की रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में। तो इसी तरह से जैसा मैंने आपसे कहा कि सामग्री का वैयक्तिकरण, जो कंटेंट है उसमें पर्सनलाइजेशन की जो प्रवृत्ति है वो बहुत बढ़ेगी और ये जो प्लेटफॉर्म है ये यूजर को ये ताकत दे पाएंगे कि वो उसकी प्राथमिकताओं को विश्लेषित करते हुए, उसकी व्यूइंग हिस्ट्री को तलाशते हुए और उसके एंगेजमेंट पैटर्न को देखते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए जो मीडिया कंपनीज हैं उनको उस एक्सपीरियंस के बारे में अवगत कराए, ताकि उस प्लेटफॉर्म पर उनका एंगेजमेंट अधिक समय तक बना रहे। क्योंकि ये भी आज बहुत बड़ी जरूरत है कि आप किस तरह से उस एंगेजमेंट को उस संबंधित प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने के लिए कोशिश करते हैं। जैसा मैंने आपका नेटफ्लिक्स ने कहा, नेटफ्लिक्स ने किया, ऐसा और भी जो चैनल्स हैं वो करने लगे हैं। अगला एक जो चीज महसूस करता हूं मैं, ट्रांसफॉर्मिंग एआर एंड वीआर, ऑटोमेटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, ये भी हमारे जीवन के एक तरह से अभिन्न हिस्से बन गए हैं इंटरेक्टिव करने के लिए और अपना जो यूजर है या जो ग्राहक है उसके उस एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए। क्योंकि मीडिया कंपनीज जो हैं वो कंटेंट क्रिएट भी कर रही है। हालांकि कंटेंट अब एक आम आदमी जो है वो तैयार कर सकता है, उसके हाथ में ताकत आ गई है कि वो कंटेंट तैयार कर सकता है, अपलोड कर सकता है। यदि आप क्रिएटिव हैं, कोई युवक क्रिएटिव है, अपने डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है, वो यूट्यूब के ऊपर अपनी फिल्म डालता है, हो सकता है रातों रात में वो फिल्म लाखों व्यूज बटोर ले। और कोविड काल में तो ये यूट्यूब पे ही हमारे यहाँ फिल्म फेस्टिवल्स और ये सब जो है आयोजित किए गए थे। इवन डीएसटी ने इस तरह के आयोजन किए थे और उसमें काफी बड़े नकद पुरस्कार भी दिए गए थे। तो ये रियल टाइम जो रिएक्शंस हैं या रियल टाइम जो ये चेकिंग है, ये इसके माध्यम से संभव हो गई है और इस कोशिश ये की जा रही है कि वो जो इंटरेक्शन है, बातचीत है, वो सरल सहज हो सके। का उदाहरण हमारे सामने है, जिसे 2016 में नियांत्रिका कंपनी ने बनाया था। उसने किस तरह से ऑगमेंट रियलिटी को अपने मोबाइल गेम के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया था और हमको लगता है कि वो खिलाड़ी हमारी ही इस दुनिया के खिलाड़ी हैं जिनके साथ आप खेल सकते हैं। और कई $मिलियन उस खेल को तैयार करने में एक तरह से खर्च किए गए थे। टारगेट ऑडियंस, एक और इसका लाभ है एआई का, कि जब आप कोई चीज देखते हैं या जितने भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं ई कॉमर्स के या दूसरे, वहां ये वो आपके उस अभिरुचियों को या आपका जो तो मेरे पास फिर यूनिवर्सिटी से संबंधित विज्ञापन, जब मैं मेल या गूगल पे देखूंगा तो साइड में मेरे पास जो अपडेट्स दिखेंगे वो उससे संबंधित दिखेंगे। तो जिसकी जैसी अभिरुचि है तो वो उसकी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, तो ये इसका भी एक तरह से संभव हो गया है कि हम विज्ञापनों को अधिक प्रासंगिक और अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसका उपयोग करें। फिर आता है स्ट्रीमिंग की क्वालिटी। ये एआई, क्योंकि कई बार आपके जो वाईफाई है, सिस्टम है, उसमें प्रॉब्लम्स आती है, बहुत हाई डेफिशिएंट वो है, उसमें भी वो एसडीआर क्वालिटी हाई, उसमें फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो एआई है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर लेगा ताकि बफरिंग कम हो और आप सहज रूप से उसको देख सकें। ट्रैफिक यदि बहुत अधिक है तब भी आपको वो सजेशन दे देगा कि आप इस समय ये नहीं, इस चीज को आप देखिए। तो वीडियो रिजोल्यूशंस को भी कम या ज्यादा कर सकने में सक्षम है, विकल्प सुझाने में आपको सक्षम है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रीमिंग है उसमें भी आपको हेल्प करता है। फिर आता है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से आप कर सकते हैं।
ये एआई ये तय कर देता है कि आप कौन से भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। मेरे पास जो वीडियोस आते हैं, आपके पास जो वीडियोस आते हैं, वो आपके जिस कंट्री में हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, उसी क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे ज्यादातर। ये अलग बात है कि यदि हमारा एक्सेस बाहर की कंट्रीज में ज्यादा है तो फिर आपको वही दिखेंगे। लास्ट ईयर मैं सिंगापुर गया, मेरा पहला ही अनुभव था। मैंने फेसबुक पे सिंगापुर की अपनी यात्रा का वृतांत लिखा, और मेरे ब्रदर की जो बिटिया है वो वहीं रहती थी, उसने जब अपना फेसबुक खोला तो वो जो मेरा जो यात्रा वृतांत है उसका अंग्रेजी अनुवाद उसके फेसबुक पे दिखाई दे रहा है, जबकि मैंने अंग्रेजी में नहीं लिखा। और अनुवाद बहुत अच्छा किया। मैंने तो कहा कि मुझे ये भेज दो, मैं हिंदी का हटा के यही डाल देता हूं। तो देखिए, इंस्टेंट ट्रांसलेशन उनके उस भौगोलिक दृष्टि से भी हो रहा है। अभी तो कोई हिंदी में है, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे फेसबुक है, नीचे ऑप्शन आता है ट्रांसलेशन। मैं चाहूं तो उसको ट्रांसलेशन करके, यदि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो मैं अपनी अपेक्षित भाषा में उसको अनुवाद करवाने में सक्षम हूं। लेकिन वहां मैंने ये देखा, तो मुझे लगता है ये भौगोलिक दृष्टि से भी जो एआई है, ये आपकी इन सारी चीजों को देखता है और उसी तरह से उसको कन्वर्ट भी कर देता है। तो एआई भौगोलिक दृष्टि से आपकी उन चीजों को देखता है। फिर होता है उसमें जो स्थानीय नियम है। यूट्यूब पे जब मेरे पास कोई, ये मान लीजिए, मोनेटाइजेशन का एक मैसेज आता है कि आपका चैनल मोनेटाइज होने जा रहा है, फिर उसमें वो सारी चीजें आती हैं मेरे पास कि आपके इनकम टैक्स के क्या रूल्स हैं, उसकी क्या शर्तें हैं, आपके यहाँ के क्या वो हैं, मतलब कंडीशंस हैं, लोकल जो हैं आपके नियम कानून देश में किस तरह के हैं। छोटे से 2 एग्जाम्पल देता हूं, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने महसूस किया हो। मैंने एक वेबिनार किया साहित्य और सिनेमा में राम, और जैसा है मैंने बहुत सारे उसमें ग्रुप में डाल दिया। थोड़ी देर बाद मेरे पास मैसेज आना शुरू हुआ कि आपकी ये पोस्ट कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। अब मैं बड़ा परेशान कि ये खिलाफ क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एआई कैचवर्ड पकड़ता है। वो दौर था जब राम मंदिर को लेकर के ये सारा जो चक्र चला था, सरकार ने मंदिर बनवाया, वहां अपोजिशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो शायद उस एआई के माध्यम से उस प्लेटफॉर्म ने, फेसबुक के प्लेटफॉर्म ने उस राम शब्द को पकड़ा और उसको लगा कि ये कम्युनल पोस्ट हो सकती है, उसने रोक दिया। फिर उसमें विकल्प आते हैं, उसमें विकल्प ये आते हैं कि आपको इसमें आपत्ति है तो किस तरह की है। ये वीडियो अवेयरनेस के लिए था, इस वीडियो में कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस का विरोध नहीं है, लेकिन 20-25 दिन बाद फिर उन्होंने उसको वापस रीस्टोर कर दिया। अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल का दिवस था। हमारे यदि कोई मित्र बंगाल के बैठे हों तो वो शायद और अच्छी तरह से समझ पाए। बंगाल की जब स्थापना हुई थी, क्योंकि इसका ऑफिशियल डेट तो है नहीं, बंगाल की स्थापना जिस समय हुई थी उस समय कुछ दंगे वगैरह हुए थे वहां पे, भाषा को लेकर के जो था। तो मैंने एक वीडियो बनाया, एक मैं सीरीज मैंने चला रखी है स्टेट फॉर्मेशन डेज पे, मैं 10 मिनट का उस स्टेट के बारे में बात करते हुए वीडियो बनाता हूं। उसका शीर्षक मैंने दिया, बंगाल दिवस उत्सव की त्रासदी, है ना, त्रासदी का उत्सव। उस त्रासदी वो थी कि वहां पर वो सारा मारकाट मची थी, लोगों की मृत्यु भी हुई थी, तो एक त्रासदी के बाद उसको उत्सव के रूप में घोषित किया गया। इसको भी फेसबुक ने रोक लिया, इसको कम्युनल गाइडलाइंस के विरोध में मानते हुए। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है वो जो शीर्षक था त्रासदी का उत्सव, उसके आधार पर उसने उसको कैच किया और मुझे उसने नोटिस भेज दिया। मैंने उनको फिर वापस लिखा कि ये इस तरह का नहीं है, अवेयरनेस के लिए है, लेकिन आज करीब महीना भर होने आया, अभी तक मेरे पास कोई भी इसका जवाब आया नहीं है। तो मैं कह ये रहा हूं कि इन कीवर्ड्स के आधार पर ये एआई जो है, ये आपके उन सारे जो इश्यूज हैं या जो आपका टेक्स्ट है उसे कहीं ना कहीं जज कर रहा है। तो या जो कहूं कि उसका पहले से वो अनुमान लगा लेता है। जो आप सामग्री डाल रहे हैं सोशल मीडिया के रुझानों के आधार पर, कहीं दर्शकों की प्रतिक्रिया को देखते हुए वो इसका अनुमान लगा करके फिर निर्णय करता है। इसी तरह से एफिशिएंट कंटेंट कैटेगराइजेशन, वो कंटेंट को कैटेगराइज भी कर लेता है। आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आपका क्राइम में इंटरेस्ट है, फिर आपके पास उसी तरह के ऑटोमेटिक टैगिंग होने की सुविधा मिल जाएगी। तो ये जो एआई ने हमको सुविधा दे दी है, और एक जो सुविधा आ गई है, आप देखते होंगे वीडियोस जो आप बोल रहे हैं वो का वो कुछ समय बाद उस पर ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है। कितना आसान हो गया है। आज से 2-3-4 साल पहले जब हमें किसी के भाषण को ट्रांसलेट करवाना होता था या उसकी ट्रांसक्रिप्ट करवानी होती थी, तो किसी टाइपिस्ट को बुलाते थे, या शॉर्ट हैंड वाला जो जानता था, अब तो खैर खत्म हो गया शॉर्ट हैंड, मैं पुराने दौर की बात कर रहा हूं, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो वो शॉर्ट हैंड से लिख के टाइप करके लाता था, फिर उसको एडिट करते थे। अभी तो इस यूट्यूब पे जो हमारे ये जो लेक्चर्स हैं वो अपने आप लिखे हुए आते हैं,
और हम वहां उसमें जाकर के वो जो लिखा हुआ आ रहा है उसको पूरे को कॉपी करके वो भाषण अपने पास पूरी ट्रांसक्रिप्ट हमको मिल जाती है। तो देखिए कितना आसान हो गया है मशीनों के माध्यम से ये काम करना। फिर ये जो गूगल है ये आपके उन सारे फोटोग्राफ्स को चेक कर लेता है, फोटोग्राफ्स को टैग कर लेता है कि किस तरह के फोटोग्राफ्स हैं जिनको हम उसको सीरीज में कर देगा। इवन आपके जो गैलरी है वो मोबाइल की, वहां भी आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप चाहें तो इन फोटोज को कैटेगराइज कर लें एल्बम के रूप में, अलग अलग टॉपिक दे दीजिए कि आप नेचर के फोटो हैं, फैमिली ट्रिप है, आपका ऑफिशियल ग्रुप है, आपके डिपार्टमेंट के हैं, उनको आप कर सकते हैं। इसी तरह से कंटेंट ऑथेंटिसिटी, जो कंटेंट है उसको उसकी ऑथेंटिसिटी भी ये चेक कर सकने में एक सीमा तक संभव है। जो हाई लेवल के एआईज हैं मीडिया में, तो मुझे लगता है इनके प्रयोग होने लग गए हैं। एक तो ये फेक न्यूज को डिटेक्ट करने वाला जो परंपरा है, हालांकि गूगल ने तो पूरा एक इनिशिएटिव चलाया, हो सकता है इस ग्रुप में हमारे कई ऐसे मित्र हों जो इस गूगल इनिशिएटिव के जो ट्रेनर भी हों। हमारे मीडिया टीचिंग में तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने पिछले 3-4 सालों में ये अटेंड किया है और अब खुद वर्कशॉप्स कर रहे हैं। तो ये इस तरह से कोई चीज वो है जो फेक न्यूज है या मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात है, उसको भी ये ट्रैक कर सकता है। जो हाई लेवल के एआईज हैं उनको ये सुविधा मिल गई है। तो रोज मिलने वाली जो सूचनाएं हैं वो इतनी अधिक होती हैं कि वो मैन्युअली शायद उनको आप स्क्रीन नहीं कर सकते। आज एआई के पास ये सुविधा है कि वो इस सारे डेटा का एनालाइज करके ये बता सकता है कि किस कंटेंट के साथ किसी व्यक्ति ने छेड़छाड़ की है। तो एक तरह से डेटा की अखंडता को मेंटेन करने की जो स्थिति है वो इससे संभव हो पाई है। बल्कि मेरा तो एक अनुभव और आपके साथ साझा करता हूं। यूट्यूब से मेरे पास एक मेल आता है कि आप वो एक उन्होंने भेजा, मुझे लिंक भेजा है कि इस लिंक के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके यूट्यूब का जो कोई वीडियो है क्या किसी और ने भी उसको अपलोड किया है अपने उसके ऊपर। क्योंकि जहां यूट्यूब के लाखों यूट्यूब के वीडियोस हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप कैसे तय करेंगे कि आपका जो वीडियो है किसी और ने तो अपलोड नहीं कर दिया है अपने उसके ऊपर, हो सकता नहीं दिखाई दे। लेकिन उस लिंक पर जब आप डालते हैं तो वो वीडियो किन किन लोगों ने, मैं ऐसे 2-3 वीडियोस मैंने ढूंढे, लकीली वो वीडियोस वही थे कि जैसे मान लीजिए आपने भी डाल दिया वीडियो और मुझे भेजा तो मैंने भी डाल दिया वीडियो, क्योंकि 2 एजेंसीज काम कर रही हैं साथ साथ, तो उनके थे। तो आज ये सुविधा आ गई है कि आपका जो कॉपीराइट का मामला है उसको भी ये कहीं ना कहीं जज कर सकते हैं। और ये यूट्यूब में तो इमीडिएटली मालूम पड़ जाता है। मेरे साथ कई बार हुआ है जब हमारे इस वेबिनार्स में कुछ मित्र कोई वीडियो दिखाते हैं, तुरंत यूट्यूब उसको रोक देता है और ये कहता है कि कॉपीराइट का ये इसमें वायलेशन है। फिर थोड़ी देर बाद इसमें ये आता है कि नहीं, वो जो कॉपीराइट होल्डर है उसने आपको ये परमिशन दे रखी है कि इसका आप यूज करें, लेकिन मोनेटाइज यदि होता है तो हम इसका पैसा आपको नहीं देंगे। तो इस तरह के उनके बहुत सारे ऑप्शन है। और एक्चुअल में यदि कॉपीराइट का वो है तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, और 3 स्ट्राइक आ गए तो आपका यूट्यूब का जो वो चैनल है उसको वो रोक सकते हैं और आपको एक्सप्लेनेशन की जो है वो अनुमति देंगे। तो आप देखिए कितनी आसानी से ये चीजें जो हैं ये अब संभव हो पा रही हैं कि आप कॉपीराइट का जो वायलेशन है वो भी तुरंत चेक कर सकते हैं। जो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात कर रहे हैं इसको भी कहीं ना कहीं ये रोक सकता है। एक और सुविधा आ गई है इसमें, पूरा एक सेशन चल रहा है, आपके 3-4-5 घंटे की मीटिंग है और आपने अपने किसी रजिस्ट्रार को, डिप्टी रजिस्ट्रार को या किसी असिस्टेंट को बिठा रखा है कि नोट्स लेते रहो। लेकिन अब एआई की ये सुविधा आ गई है कि वो उस पूरे मिनट्स के जो आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं उनको वो समराइज कर सकता है और उसके की पॉइंट्स भी बता देगा कि इस पूरी मीटिंग के ये की पॉइंट्स हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये पार्लियामेंट के हमारे डिस्कशंस वगैरह हैं जो कई घंटे तक चलते हैं, उसमें शायद ये एआई जो है बहुत उपयोगी हो पाएगा। ट्रांसलेशन का काम तो हो ही रहा है। लोकसभा सेक्रेटरी मेरे एक मित्र हैं, ये जब नई लोकसभा बनी और वहां ट्रांसलेशन होने लगा तो मैंने उनसे पूछा था कि यार ये साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, सब मशीनों के थ्रू, जैसा उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा मशीनों में तो बहुत सारी गड़बड़ होती है। एक जगह लिखा हुआ था फॉर फास्ट डिलीवरी कॉन्टेक्ट सो एंड सो, उसका अनुवाद हो गया शीघ्र प्रसव के लिए संपर्क करें सो एंड सो, जबकि वो किसी एक फूड वो है जो जोमेटो या कोई होगी स्विगी वगैरह उसका विज्ञापन था। तो मशीनी अनुवाद में तो बड़ी मजाक हो जाती है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मशीन की भी ट्रेनिंग होती है। तो ये जो मशीन है इसको भी मनुष्य जो है
वो ट्रेंड कर रहा है। तो लेकिन यहाँ तो मैं यही कहूंगा कि स्थिति ऐसी रहे कि मशीन हमारी गुलाम रहे। जिस दिन मशीन ने हमें गुलाम बना लिया, तो मैं तो उस दिन की कल्पना करता हूं कि जब मशीनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा। एक मित्र ने मुझे बताया कि एक बार एक रोबोट, उसको कोई सामान उठाने के लिए कहा गया और वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह किसी मशीन में डालना था। जब सारा सामान उठ गया तो वहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। उस रोबोट को क्या मालूम कि वो इंसान है कि सामान है। उसने उस इंसान को उठाया और उस मशीन में डाल दिया और उसका वहां पर कचूमर निकल गया। तो ये इस तरह की स्थितियां हैं, वो भी खतरनाक हो सकती हैं। ये एआई आपका स्पैम युक्त जो प्रोफाइल्स है वो भी चेक कर सकता है कि किस तरह से किसी ने अपना गलत कोई प्रोफाइल है या गलत इस तरह की चीज आई है। और क्रिएटिविटी जो है वो कोई आपकी आलोचना है, निंदाजनक टिप्पणी है, या एक रचनात्मक आलोचना है, उसको भी वो तय कर सकता है। तो ये एआई का मैंने कहा ना कि अपन जहां नहीं सोच सकते हैं उससे भी आगे ये जो एल्गोरिज्म है, इनके माध्यम से ये बहुत कुछ कर सकने में सक्षम है। लेकिन मूल रूप से व्यक्ति की रचनात्मकता को बढ़ाने की दिशा में इनका यदि उपयोग होता है, आप कोई म्यूजिक परफॉर्मेंस बना सकते हैं, आप कलाकृति बना सकते हैं, आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आप फिल्म बना सकते हैं, आप वीडियोस बना सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं इसके माध्यम से आप। आने वाले टाइम में जब हम लोग हैदराबाद का वो देखने गए थे, रामोजी राव का जो वो फिल्म सिटी है, तो वहां ये कहा, जो घुमा रहा था वहां, कि साहब यहाँ तो आप स्क्रिप्ट लेके आइए और कलाकार लेके आइए, बाकी सारी चीजें यहाँ हैं। तो अब तो मुझे लगता है शायद उसकी भी जरूरत नहीं है। अब तो वो कलाकार भी शायद एआई के माध्यम से हो जाएंगे। आपने पढ़ा होगा अभी कुछ दिन पहले एआई मिस यूनिवर्स के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, एआई मॉडल्स के। यहाँ भी अल्टीमेटली तो मानवीय बुद्धि का ही सारा खेल है ना। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी चीजें हमारे हाथ से निकल जाएं। अभी 5-7 दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी, एक रोबोट ने आत्महत्या कर ली। मतलब रोबोट इतने अवसाद में आ गया कि उसने आत्महत्या कर ली। मतलब हम उस दौर में आ गए हैं कि इन मशीनों में भी भावनाओं का संचार कर दिया। जैसे इंसान अवसाद में होता है, ऐसे मशीनें भी अवसाद में आ गई हैं। हम कौन सी दुनिया की ओर जा रहे हैं मुझे नहीं पता। फिर आता है आपके डीप फेक। बहुत सारे घटनाएं घटी डीप फेक को लेकर, किस तरह से फोटोज के साथ छेड़छाड़ की गई। लेकिन मित्रों, इस बात की कल्पना कीजिए, जब चुनाव से 48 घंटे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवाज में कोई बात आ जाए और वो ये कहने लग जाए कि कांग्रेस को वोट मत दीजिए, कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, या वाजपेयी जी आ जाएं और वो ये कह दें कि साहब बीजेपी को मत सहयोग कीजिए, उसमें ये गड़बड़े हैं। 48 घंटे के अंदर आपके पास समय नहीं है। ये तो वो हैं जो दिवंगत हो चुके हैं। मान लीजिए किसी जीवित बड़े नेता का इस तरह का वक्तव्य आ जाए, जब तक आप खंडन करेंगे तब तक तो वो वायरल हो गया सब जगह। ये एआई आपकी आवाज की हूबहू नकल उतारने में सक्षम है। इसके साथ जो डिजिटल क्राइम है, साइबर क्राइम है, वो तो अलग है। लेकिन ये किस तरह से विश्वसनीयता को भंग कर सकते हैं, और जिस तरह से ये काम किया जा रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ गई है, मुझे लगता है कई बार तो ये मीडिया वाले जो ये जो फैक्ट चेक कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। और जब तक फैक्ट चेक करेंगे तब तक न जाने कितना नुकसान उस लोकतांत्रिक राष्ट्र में हो चुका होगा। और ये हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया का हर देश कहीं ना कहीं इस समस्या से पीड़ित है। इसलिए कहीं हमें इन एआई की सीमाएं वहीं तक होनी चाहिए जब ये मानवीय शक्तियों, मानवीय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग हो और आपको ये क्रिएटिविटी की ओर ले जा सके, या शोध अनुसंधान के लिए डेटा का एनालिसिस जितना जल्दी ये कर पाएगा। एसोसिएटेड प्रेस और शायद वॉशिंगटन पोस्ट, उन्होंने एआई के माध्यम से उनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किए जिन्होंने कुछ वर्ष पहले इवन स्पोर्ट्स ओलंपिक की कवरेज भी की है। लेकिन मूल रूप से वो स्पोर्ट्स और मौसम संबंधी समाचार जो हैं वो इस एआई बेस्ड जो है वो बना रहे हैं, ताकि जो जर्नलिस्ट हैं उनको अपना समय उसमें नहीं जाए, वो दूसरे जो और टारगेट हैं उसकी ओर ध्यान दे सकें। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दौर में शायद ऐसा समय आएगा कि जब सारी रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स गार्जियन ने लिखना शुरू कर दिया, गार्जियन में रोबोट संपादकीय लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि वो जो आपका पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस जिस तरह से रहते हैं, क्योंकि जो डेटा आपने फीड किया है उसी के अनुसार वो लेख लिखेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में जिस व्यक्ति ने वो मॉडल बनाया है, उसमें जिस तरह से फीड किया है, उसी के अनुसार भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के संबंधों पर कोई राइट अप होगा तो वो निश्चित रूप से उसमें झलकेगा। तो वो जो पूर्वाग्रह वाली बात है, वहां मुझे लगता है कि हमें विशेष सतर्क रहना पड़ेगा। और शायद ये भी कोशिश की जानी चाहिए
कि जो डेटा उसमें दिया जा रहा है वो लाइसेंस युक्त हो, ताकि दूसरी जो समस्याएं आती हैं वो उसमें नहीं हो। तो इसी तरह से हालांकि समय काफी हो गया है, मैं संक्षेप में कुछ और बातें करूंगा, विशेषकर मीडिया के संदर्भ में। हेडलाइंस, कीवर्ड्स और कंटेंट तैयार करने में भी एआई की अपनी विशेष भूमिका हो सकती है। इंग्लिश में तो बहुत समय से है, जब आप लिखते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को आपको बता देता है, आपको कई बार शब्दों का भी वो सजेशन दे देता है कि यहां पर नहीं, ये सजेशन लिखिए। इवन व्हाट्सएप पर भी आप जब कोई मैसेज भेजते हैं तो एक वो ग्रीन ब्लू ब्लू एक लाइन आती है या ग्रीन आती है जो आपको कहीं सतर्क करती है कि इस शब्द की जगह ये शब्द लिखिए। रेड आएगा तो स्पेलिंग मिस्टेक है। मैंने 2 दिन पहले देखा हिंदी में भी ये सुविधा शुरू हो गई है। मैंने जनसंपर्क लिखा तो बाई चांस बोल बोल के मैं टाइप करता हूं तो संपर्क में म पूरा चला गया, और जैसे ही मैंने सजेशन को उसको क्लिक किया तो संपर्क का म आधा हो गया। इसका मतलब हाल ही में हिंदी में भी ये सजेशंस जो हैं वो देने लग गए हैं। तो एआई के माध्यम से आप न्यूज आर्टिकल बना सकते हैं, बड़े पैमाने पर डेटा को उसमें तैयार कर सकते हैं, ताकि जब भी जरूरत पड़े तुरंत उसका एनालिसिस करके अपने समय की बचत कर सकते हैं और इन डेप्थ रिपोर्टिंग की तरफ आप बढ़ सकते हैं। इसी तरह से जो उसके वैकल्पिक जो ऑप्शंस हो सकते हैं ये भी आपको देता है। पारंपरिक टीवी शोज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये टीवी शोज पहले, मुझे याद है जब हम पढ़ते थे, जो थर्सडे की फिल्म टीवी पे आती थी या वेडनेसडे को आती थी, उस दिन यदि हमने थिएटर बुक करा लिया वो पूरा थिएटर खाली था, क्योंकि दूरदर्शन पर फिल्म आती थी। अब कोई नहीं रुकता है, चाहे वो केबीसी है या उसका कोई भी लोकप्रिय शो है, वो उसको कई प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है। तो इसलिए सोशल मीडिया पर भी विभिन्न प्रकार की स्ट्रीमिंग सेवाएं उपलब्ध हैं। इसलिए ऑनलाइन उपस्थिति बनाने के लिए ये सारी मीडिया कंपनियां जो हैं उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण सामग्री के लिए प्रयत्न कर रही हैं। इसलिए इनके तेजी से बढ़ते रुझान के अनुरूप ये अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करते हुए इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको हमेशा मिलेंगी। सूचनाओं की बौछार लगातार चारों ओर से हमारे ऊपर हो रही है। सूचनाओं के इस सामग्री के उपयोग में भारी वृद्धि हो रही है। तो सामग्री बनाने की प्रक्रिया में इसके उपयोग करने के तौर तरीके जो हैं वो बदलेंगे। इसी तरह से जो पारंपरिक व्यावसायिक मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन या और, उनको भी एक तरह से चुनौतियां मिलने लगी हैं। कंटेंट तैयार करने के तौर तरीके बदलने लगे हैं। पारंपरिक पत्रकारिता को बाधा पहुंच सकती है। वैचारिक सामग्री की उपयोगिता की दृष्टि में हमें उसमें जो कंपटीशन है वो शुरू हो सकता है। पूर्वाग्रह की बात मैंने आपसे की, दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति में भी कहीं ये सक्रिय हो सकते हैं। नौकरियों पर प्रभाव की बात अक्सर की जाती है, तो मुझे लगता है कुछ समय तक प्रभाव पड़ेगा। अंततः नई तरह की नौकरियां आएंगी, क्योंकि हम इनको क्या प्रॉम्प्ट देते हैं उस पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह की सामग्री लाएंगे, और जो सामग्री इनसे तैयार हुई है उसको भी कहीं जज करने का, देखने का, वहां अल्टीमेटली मानवीय क्रिएटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं उसमें आएगी। तो मेरे ख्याल यही कुछ बातें थी, और वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समय शायद काफी हो गया है। कोई सवाल हो, कोई टिप्पणी हो तो आमंत्रित है। Thank you, sir, for Any- giving this knowledge and your precious views. And the topic is really interesting. So we all know the most of the people are curious to ask the questions here. And I would like to request our guests and viewers to kindly raise your hands to emojis and ask your questions, please. Prerna madam had some questions. She can start, while others can either type in the window or they can raise their hand and press Destiny will coordinate for them. नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे कि आपने बोला कि एआई जो है हमारा सप्लीमेंट, हमें उसको एक सप्लीमेंट, एक सपोर्ट की तरह लेना चाहिए। बट सर क्या मतलब आपके इस बात पे क्या विचार रहेंगे कि जैसे आपको लगता है कि एआई के आने से हम लोगों की क्रिएटिविटी थोड़ी सी कम होती जा रही है, इन द सेंस कि अब क्योंकि सब कुछ एआई कर देता है, लिखने से लेकर, सोचने से लेकर, आइडियाज से लेकर, तो जो हम लोगों का पढ़ने, रिसर्च करने का जो एक पहले रहता था कि हाँ थोड़ा रिसर्च करें, पढ़ें, उससे आइडियाज निकालें, न्यूज़पेपर पढ़ें,
अब वो थोड़ा सा सीमित हो गया या कम होता जा रहा है, बिकॉज हम थोड़े डिपेंडेंट हो गए हैं कि लिखना भी है तो तुरंत बस फीड डालेंगे और चैट जीपीटी एक शानदार आर्टिकल लिख के दे देगा। तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिट हो रही है सर। आपने कभी चैट जीपीटी पे कोई आलेख लिखवाया है क्या? सर बहुत लिखवाए हैं। लिखवाया तो आपको लगा कि वो बहुत अच्छे हैं? नहीं। सर मैं तो मेरा उस पे मैं अलग छोटा सा व्यू है। एग्जांपल देता हूँ। नहीं, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। ये जो आपका विषय था, ये मैंने चैट जीपीटी पर डाला और मैंने लिखा राइट 2000 वर्ड्स ऑन एआई एंड मीडिया कंजप्शन, और जो आपका एग्जैक्ट था। यदि मैं उसके आधार पर आपको भाषण देता तो शायद आधे मित्र तो छोड़ चुके होते अब तक। इसलिए मेरा ये मतलब है कि इंसान का जो जो आलोचनात्मक सोच है, आप जिस तरह से चीजों को देखते हैं, है ना, वो छोटी मोटी चीज तो पूरी कर देगा भले ही आपकी, लेकिन उसके पास अभी भाषा का वो संस्कार एक बेसिक आइडिया दे सकता है आपको कि ये विषय है और इसके ये डायमेंशंस हो सकते हैं। लेकिन केवल उस पर यदि आप निर्भर होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत अच्छा आलेख सक्षम हो पाएंगे। मैं तो इन दोनों ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन में एक वीडियो बना रहा हूँ, और मैं चैट जीपीटी का और एक लैब एलएलएम करके, और इन दोनों का वो थोड़ा पेड वर्जन है, इन दोनों का उपयोग कर रहा हूं। अब हो सकता है कि जो हाई क्वालिटी के एआई हैं उनमें यह सुविधा हो, मेरी क्षमता नहीं है इतनी। पहले मैंने चैट जीपीटी का भी सोचा था, वो जो 0.4 आया है ना, 4 पॉइंट कौन सा आया, उसमें शायद $25 करीब पर मंथ लगते हैं, तो वो बहुत ज्यादा है, मेरा इतना काम नहीं है। हाँ, यदि आप ऑफिस में या बड़ी बड़ी कंपनीज में हैं और वहां आपके पास एआई की सुविधा है और वो लिख पा रहा है, तो फिर हो सकता है कि आपको ये सुविधा मिल गई हो। बाकी बाई एंड लार्ज मुझे लगता है कि इंसानी सोच वो आपको एक आधार दे सकता है, वो एक फिल्म की तरफ आपको स्क्रिप्ट लिख के दे सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपना इनपुट डालना ही पड़ेगा। और फिर जो मैंने कहा कि एआई सहयोग की तरह से हो, और ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कल हो सकता है व्यक्ति ऐसी कोई मशीन बना ले जिसमें ये जो हम आज बात कर रहे हैं कि ये दुविधाएं हैं, वो दुविधाएं खत्म होकर के सुविधा हो जाए। आपने शायद पहले कभी नहीं सोचा होगा कि आप मेक माई ट्रिप से टिकट बुक कराते हैं और तुरंत आप पे मेल आती है कि आपके फलाने एयरपोर्ट पर एक कैब खड़ी है ना। ये सुविधा तो हो गई है आपको। एयर टिकट के लिए आपको विंडो पर जाने की जरूरत नहीं है, रेल टिकट के लिए जरूरत नहीं, ये सुविधा तो हो गई, आपके जीवन को आसान बना दिया है ना। लेकिन वो जिस क्रिएटिविटी की बात करते हैं आप आर्टिकल में, व्यंग लेखन में, वो इंस्ट्रूमेंट सबके पास है, कितना का आपको वैरायटी देगा, वो कहीं ना कहीं साम्यता तो होगी होगी। इसलिए मेरा तो ये भी मानना है कि यदि किसी मीडिया हाउस को अपने आलेखों में विश्वसनीयता बनानी है तो ये भी बताना चाहिए कि ये एआई बेस्ड है। आपने देखा होगा इंडिया टुडे और बहुत सारी पत्रिकाओं में वो उन फोटोग्राफ के साथ लिखते हैं कि ये फोटोज एआई जनरेटेड है। ये उसको बेहतर बनाने के लिए उसको स्किल्स का उपयोग किया उन्होंने। लेकिन क्या एआई उस फोटो, रघु राय बहुत बड़े फोटोग्राफर थे, उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको क्या ये मात दे पाएंगे? मुझे लगता है कि अभी तो मुश्किल है ना। अब बाकी तो साहब जब उपयोग कर रहे हैं तभी आप तय कर पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। बाकी इसको एक सहयोगी के रूप में लें, तभी हमारा और समाज और देश का। नहीं तो सबसे बड़ी चुनौती तो मैंने आपसे कहा कि प्रेजुडिस, आपने जो डेटा फीड कर रखा है उसी के बेस पर तैयार करेगा वो तो। जी। Thank you, Professor Priyadarshini. May I request Dr. Lata Suresh to consolidate, because there are a lot of questions she can consolidate and raise to Professor Saab, because सर ज्यादातर तो सर आप बहुत अच्छे सभी को ये आपने जो अपने विचार प्रस्तुत किए एआई एंड मीडिया पे, इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड बाय ऑल द ऑडियंस दोज हु आर हियर, और बहुत कंस्ट्रक्टिव रहा सर। जैसे कुछ कोई लोगों ने क्वेश्चंस पूछा है, मैं भी बताना चाहूंगी कि एआई डिटेक्शन, प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल्स आज के टाइम में अवेलेबल हैं। अगर आप एज इट इज कॉपी करेंगे तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। कुछ प्लेगरिज्म टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिससे पता लग जाता है। दीज डिटेक्शन टूल जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हम कहते हैं उसको एकेडमिक और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में इसको आपको पता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है इसको ध्यान में रखना। सो चैट जीपीटी या कहीं से भी अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एथिकली प्रूवन हो, और देयर शुड नॉट बी एनी प्लेगराइज्ड मटेरियल। एआई का भी आज के टाइम में डिटेक्ट होता है, तो जैसे टर्निटिन है, ड्रिल बिट है, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर्स,
जो इसको तुरंत डिटेक्ट करते हैं। रोहित जी, हाँ, आपका कोई क्वेश्चन है, पूछिए प्लीज। जी मैम, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, जी। बताइए। जी। मैम, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे सबने कहा कि कंटेंट जनरेशन में भी एआई का इस्तेमाल होता है, तो इंडिया में किस तरीके का कंटेंट जनरेशन में एआई का प्रयोग हो रहा है? लाइक जैसे पॉलिटिक्स में हो रहा है, या फिर स्पोर्ट्स में, या वेदर में? तो ये जानना चाह रहा था कि किस तरीके का कंटेंट जनरेशन में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। क्या क्या पूछा, मेरे समझ में नहीं आया। सर, ये पूछ रहे हैं कि एआई किस किस फील्ड में काम में आ रहा है, जो आप ऑलरेडी बोल चुके हैं, शायद मिस कर गए मेरे होंगे। ख्याल कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें एआई नहीं आ रहा है उपयोग में? आपके जीवन के सर, हर क्षेत्र में जैसे आ रहा है। आप बाजार जाइए, आप किसी कोई चीज खरीदिए, वो आपको बिल देता है, मैसेज फोन पे आ जाता है, और उसके बाद आपको टाइम टू टाइम मैसेज मिलते रहते हैं, सर है ना? अब जैसे मैं अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से मैं पीएचडी कर रहा हूँ, और इसी पे मेरा टॉपिक है, रिसर्च भी कर रहा हूँ। तो मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि कोई अगर जैसे न्यूज अगर पब्लिश होता है, तो उसमें ये नहीं लिखा होता है कि ये एआई के द्वारा है। तो उसी को मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा फीड है जिसपे एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे पॉलिटिक्स पे या स्पोर्ट्स पे या फिर वेदर पे, इस तरीके का। तो वो मुझे मिल नहीं रहा, और देखिए, कोई ऐसा वेदर का मिलेगा तो तो। आपके ये जो मैं ये देखता हूँ कई बार आज तक, तो इसमें तो वेदर रिपोर्टिंग वो जो उनकी एआई एंकर है वही कर रही है ना? अखबारों ने अभी ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा, 10-12 अखबार मैं भी देख लेता हूँ अक्सर, लेकिन कहीं देखा नहीं कि न्यूज एआई बेस्ड है ना? तो एआई अभी अपने यहाँ ज्यादातर डेटा एनालिसिस के रूप में काम में आ रहा है। आप डेटा फीड करेंगे तो आपको किसी भी घटना का, जैसे इलेक्शंस है, मान लीजिए पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए, तो अब ये 17-18 इलेक्शंस जो हुए उनके इतने डेटा हैं, आप यदि मैनुअली करने बैठेंगे तो शायद कई महीने लग जाएंगे। स्पोर्ट्स का है, तो वो जो डेटा आपने डाल दिया, ओलंपिक्स है, अब 1 शताब्दी होने वाली है ओलंपिक्स की, तो आपने किस तरह से वो अब तक के सारे स्पोर्ट्स आपने डेटा डाल दिया, फिर जिस तरह से चाहिए वो एनालिसिस करके दे देगा आपको। अब ये कितना क्रेडिट उस एआई को या देते नहीं देते हैं, ये उनकी नैतिकता पर है। इसलिए हम कहते हैं कि यदि एआई बेस्ड रिपोर्ट है, किसी भी मीडिया हाउस की प्रतिष्ठा तभी है जब वो पूरा अपना सोर्स जो है उसका उल्लेख उसमें करे, है ना? तो अब ये जो आप कह रहे हैं, तो इसके लिए तो मुझे लगता है बेटर ये है कि आप मीडिया हाउस में जाएं रिसर्च के पर्पज से। जो हमारे बड़े मीडिया हाउस है, विशेषकर दिल्ली में जो है, इवन जयपुर में तो राजस्थान पत्रिका और भास्कर ने भी एआई को फोटोग्राफ में यूज करना शुरू किया है। कई बार उन्होंने लिखा है कि ये फोटोग्राफ एआई से बनाया गया है ना? तो आप वहां जाकर के उनके जो एडिटोरियल टीम है उनसे बात करें, और इंडिया टुडे ने तो बहुत प्रयोग किए, तो उनसे जाके बात करें। आप पीटीआई यूएनआई है, यहाँ भी जाके बात करें किस तरह से एआई का उपयोग कर रहे हैं। Sir, I सर, can एक add some क्वेश्चन है। questions in the chat box वेट also. इसमें है, वेट do you think that AI सर सर fully सर take over job roles? जॉब्स, देखिए अभी तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मुझे लगता है कि फर्क पड़ने लग गया है। आईआईटी शायद बेंगलोर का या कहाँ का था, 30-40%, 30-40% लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ है अभी आईआईटीज में, नहीं सॉरी आईआईएम में। तो इसका मतलब ये हुआ, आईआईटीज भी शायद बॉम्बे में बहुत लोगों का नहीं हुआ, तो ये जॉब्स पे फर्क तो आ रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये इनिशियल फेज में है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ट्रांजिशनल फेज है। आने वाले समय क्यों रुकेगा तो नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए। ये हम ये सोचें कि वापस पुराने दौर में चले जाएं, ये कतई नहीं होगा। इसको आपको अपनाना ही पड़ेगा। अब यह है कि इसको अपनाने के लिए किस तरह की हमारी योजनाएं बनती हैं। अब तो भारत सरकार भी डिजिटल इंडिया पे कितना खर्चा कर रही है, एआई की रिसर्च के लिए हम लोग खर्चा कर रहे हैं, तो ये आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल जॉब हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और नए जॉब्स जो आएंगे, मीडिया में प्रूफ रीडर की पोस्ट खत्म होगी, धीरे धीरे रेफरेंस लाइब्रेरीज, माफ कीजिएगा लता जी, अब ये सब चीज चूंकि उसी पे आ जाएगी, तो अब क्या जरूरत पड़ेगी। मैं जब जॉब में था 11 अखबार रोज के देखता था, और मेरे पास 50-60 फाइल्स हैं। क्लिपिंग सर्विस की मेरी आदत थी। मेरे पर्सनल लाइब्रेरी में 13,000 किताबें हैं। अब वो किताबें धूल चाट रही है, पढ़ने वाला ही कोई नहीं है, सब कुछ गूगल पे मिल जाता है आपको। नई पीढ़ी तो आ ही नहीं रही है। अभी भी हमें तो प्रिंट चाहिए। हमें तो अभी भी मुझे लाइब्रेरी में उन किताबों की खुशबू आती है तो आनंद आता है। नई पीढ़ी तो किंडल पे पढ़ती है। तो ये चेंज आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से कोई नई तरह के इन एआई को चलाने वाला भी तो इंसान ही है, उसका एनालिसिस करने वाला है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की पोस्ट आएगी। आप कितनी क्रिएटिविटी के साथ इनका उपयोग कर सकते हैं, और जो रिजल्ट आता है, जो कुछ उन्होंने अपडेट किया है, उसको भी तो आखिर कहीं ना कहीं उसका यूज किस तरह से करोगे आप।
तो केवल मशीनों से जिंदगी चल जाएगी वो शायद नहीं होगा। हालांकि अब तो ये भी खबरें आ रही है कि रोबोट्स की आपस में विवाह होने लग जाएंगे। ये भी खबरें अभी महीने 2 महीने पुरानी खबर है। तो अब विवाह होने लग जाएंगे तो फिर हो सकता है कि अगली जनरेशन भी रोबोट के माध्यम से जन्म लेने लग जाएगी। जब हम इनमें सब कुछ फीड कर देंगे, फीलिंग्स फीड कर देंगे। वो एक फिल्म थी ना कमल हसन की, जिसकी जो हीरोइन थी वो थी ऐश्वर्या राय। अब उसमें रोबोट हीरोइन से प्रेम करता है, उस रोबोट में भी वो आ गया, सेंसिटिविटी आ गई, रजनीकांत। संवेदनशीलता आ गई। तो आगे क्या होगा ये तो मैं सोचता हूँ आप कल्पना ही नहीं कर सकते। जो सोच रहे हैं, है ना, आप बैठे बैठे सोचिए कि काश ये हो जाए, मुझे लगता है वही हो जाएगा। ये फील तो आपने किया होगा ना, घर में बात करते हैं और अगले दिन मालूम पड़ा कि मोबाइल पे वही विज्ञापन आ रहा है आपके पास। मैंने तो Yeah. बहुत फील किया है। एक दिन घर पे, मैं बॉम्बे में हूँ, मैंने कहा यार होटल ताज में चाय पी के तो आए, कैसा लगता है दूसरे आपके घर में जो अलेक्सा शायद बैठती है वो वो दिन आ सब जाए जब मैं किसी मित्र के जाऊं तो मेरी फोटो खींचे, मैं उसकी फोटो खींचूं और वो क्या सोच रहे हैं ट्रांस मनी मन तो गालियां दे रहे हैं कि यार कहाँ आ गया, मेरे को जाना है, बड़ा बोर है। ऊपर से कह रहे हैं कि यार बड़ा अच्छा रहा, मैं तुम्हारी वेट कर रहा था, बहुत दिनों बाद आए हो। क्योंकि मोबाइल का फोटो भी ट्रांसलेट कर लेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। इतना आप सोच सकते हैं उस साथ सोचें, लेकिन इससे आगे रहे, क्योंकि इसको तैयार करने वाला भी इंसान है। और इंसान ने यदि इसका दुरुपयोग किया, मिसयूज किया, जैसा आज हो रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में कामराज का वीडियो आ गया, जो आपकी डेथ हो गई है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो, और ओरिजिनल आवाज में कर रहे हैं। तो चुनावों से पहले ये सारे संकट, डीप फेक में हमारे कितने जो सेलिब्रिटीज हैं ये इसमें आ गए। और मैं जो पढ़ रहा था, इतना सस्ता है ये, कुछ डॉलर्स में मशीनें आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर आ जाते हैं और तुरंत कर लेते हैं, विद इन मिनट सेकंड कर लेते हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है कि चैलेंजेस आएंगे। और अब कहाँ जाएगी सोसाइटी, ये शोध अनुसंधान का विषय है। Mr. Arvind Kumar has raised his hand. Madam, permit Mr. Arvind Kumar. I also want. Am I audible to everyone? जी सर जी। यस प्लीज। एक दो कमेंट्स थे मेरे मैम। एक तो क्या है, डॉक्टर लता सुरेश आपने एक बात कही थी प्लेगरिज्म चेक की। उसमें मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि प्लेगरिज्म चेक तो जरूर होता है, बट प्लेगरिज्म चेक का भी बहुत लिमिटेशन है। प्लेगरिज्म चेक का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है, यू कैन ओनली चेक द प्लेगरिज्म इफ इट इज डन टेक्स्ट टू टेक्स्ट। आज के समय में ऐसे भी एप्लीकेशंस हैं जो वीडियो के अंदर के टेक्स्ट निकाल करके और उसको कॉपी कर लेंगे, उसको आप नहीं या ऑडियो से निकाल लेंगे टेक्स्ट। उसका कोई तरीका नहीं है चेक करने का प्लेगरिज्म कोई भी टूल के थ्रू। सो देर आर मीन्स एंड वेज टू चीट, अगर कोई गलत करना चाहे तो। दूसरी बात है, संजीव सर आपने एक चीज बोली थी कि साउथ कोरिया में मेरे ख्याल से एक रोबोट ने जो है सुसाइड कर लिया था। मैं सबसे एक चीज पूछना चाहूंगा, घड़ी हमारे घर में, सबके घरों में घड़ियां होंगी, 24 घंटे चलती रहती है, क्या कभी घड़ी थकता है अपने काम करने से? घड़ी इसलिए नहीं थकता है बिकॉज घड़ी के पास इमोशन नहीं है। द सेम अप्लाइज विथ ऑल द एआई बेस्ड रोबोट्स और टूल्स। किसी भी रोबोट में अगर मैं उसको 24 घंटे भी काम दूं, वो कभी सुसाइडल हो ही नहीं सकता है। अगर उसने सुसाइड किया, इसका मतलब है कि उसके जो डेवलपर्स हैं उन्होंने उसके एल्गोरिदम में जो डीप लर्निंग होती है, बेसिकली हमें समझना होगा कि जो डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स होता है विच बेसिकली इज फाउंड बाय एएनएन सीएनएन एंड आरएनएन, उसमें कहीं ना कहीं कुछ खास करके स्पेसिफिक कोडिंग की होगी जिसकी चलते वो काम हुआ। अदरवाइज एक रोबोट कभी भी मिसचीवियस नहीं हो सकता है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता है, वो कभी थक नहीं सकता है, वो कभी भी सुसाइडल नहीं हो सकता है बिकॉज दे डू नॉट हैव इमोशंस। So I think these are examples just to deviate the mindset of normal individual. Otherwise, AI can only be an enabler. अब ये वही बात हो गई कि अगर मेरे हाथ में किसी ने बंदूक दे दी, अगर मैंने बंदूक से लेके किसी की जान ले ली, वो मेरा मिसयूज है, बट बंदूक का काम तो सुरक्षा देना था। So similarly, Right. AI can only increase jobs. It can Mr. only Arvind, add more value. thank you, Mr. Arvind. We got constraint of time. Thank you, sir. Lata, sir, any questions coming up pending in the chat box?
No, sir, we can ask Prerna Right. to kindly sum Sir, up the I session. think there is no ended discussion and the question and answers here. So एक I would आवाज like someone wanted Ms. Prerna, the governing body member of PRSD, to kindly summarize this topic and the session. So who missed the part in the initial time, so they can recover. I request everybody's mic muted. Over to you, Prerna, please. Then Prerna. थैंक यू प्रियदर्शनी मैम। इतना शानदार और इतना अच्छा सेशन रहा है, मैं बहुत ही अपने आप को मैं सक्षम महसूस नहीं कर रही हूँ उसको समाप्त करने के लिए। बट दो बहुत सुंदर चीजें जो आज मैं यहाँ से लेके जाऊंगी जो सर ने बोला है, वो सबसे पहला ये है कि जैसे सर ने कहा कि एआई का जादू जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इससे घबराने की बजाय हम एआई को सप्रेम अपनाएं और उसको एक अनेबलर की तरह यूज करें। लेकिन ये ध्यान रखें कि चाहे एआई हो या मशीन हो, ह्यूमन मशीन को हम मशीन के गुलाम हम ना बने, बल्कि एआई को सिमिलरली अपना गुलाम बनाए और उसके गुलाम ना बने। क्योंकि आज हमारा इतना शानदार सेशन हुआ, इसका ये प्रूफ है कि एआई कभी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे सर ने बोला एआई इन मीडिया, अगर हम चैट जीपीटी में डालते तो जो कंटेंट हमारे पास आता वर्सेस जो आज सर ने इतना शानदार लेक्चर दिया, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इससे पता चलता है कि एआई की जगह अलग है और ह्यूमंस की जगह अलग है। वो कभी ह्यूमंस को, ह्यूमन इमोशंस को, ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, हमें बेहतर इनेबल कर सकता है अपने कार्य को, अपनी सक्षमता को आगे बढ़ाने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सर का। सर, बहुत शानदार सेशन रहा और बाकी पार्टिसिपेंट्स का भी। ओवर टू यू प्रियदर्शनी जी। So our Vice President, Mr. Vipin Kharbanda sir, is waiting in the row to giving thankful note to our viewers and guests. Kindly, sir, please. Vipin sir, your mic is muted. Yeah. Thank you very much, Priyadarshini. I have just checked with the AI tool regarding my blur photograph. So he said कि you need to change the camera. So this is what AI is. So I would like to take a moment to express my sincere gratitude to each and every one of you for making this webinar on AI and media a resounding success. Banavar sir, we the members of PRSD deemed it our proud privilege to propose vote of thanks. Gratitude is not just a sentiment, it is a reverence of the heart. Our heartfelt and sincere thanks to Professor Sanjeev Bhanawat for giving this enlightening and very informative session. Dissemination of tips in this age of digital media has added value to the knowledge. Sanjeev sir, you have cleared most of our doubts pertaining to digital transformation, changing trends in the communication in the digital age, and also the suggestions on way forward for communicators. We are grateful to all our guests, participants, and our audience for making this webinar a great success. Our sincere thanks to Sarvesh Tiwari ji, Baba sir, our young team members, Priyadarshini, Prerna, Dr. Lata Suresh, the leading this Samvad series. Dr. Lata Suresh, she is our brand ambassador in the general and for the flagship programs in particular. Big thanks to them and all the respected board members of PR Society Delhi who have worked day and night even up till the last. Our special thanks to Mr. JP Sharma ji, Sanchit, Rama ma'am, Raj Gopalan sir, our former chairman, and without them it was not possible to conduct this webinar. Special thanks to Mr. Robe Lal, former board member AAI, for joining us. Thanks to Mr. Anil Sajdeva, joined from Canada, Vancouver. We sincerely appreciate the missionary zeal with which all have worked towards the success of the webinar. Extraordinary energy, free and frank discussion to reach out the new ideas to synergize the delivery is praiseworthy. So far as the entire team of PRSD governing body is concerned. Thank you all again for your contributions.
Let us continue to explore and harness the potential of AI and media to shape a brighter future for all. Once again, we thank you, Professor Sanjeev Bhanawat, for your presence by sparing time from your busy schedule and valuable information shared with us. Special thanks to Naman Gauba for the last moment crisis resolution of link management. Now we come to the end of the webinar, and thanks you all once again. We have not come to the end. Not come to the end of webinar. One special thanks to Vipin Kharbanda ji for last minute posting the links to the university students, and as a result we have got 80 plus people, 66, 67 here, and Yeah. two classrooms. Yeah, sorry to, I forgot. Of Sarvesh ji, which are having 15 to 20%. Another 20 to 25% are there. And now I think it is a great success. Thank you very much. Thanks to all. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, everybody. Keep meeting. And next